इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम लोग कहते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन यूनिफॉर्म मोशन. ओके, the object is in uniform motion if it covers equal distance in equal interval of time. Now let us take one example. एक एग्जाम्पल लेते हैं. सपोज एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ. सी हियर आई एम ड्राइंग द ऑब्जेक्ट. हियर वन स्ट्रेट पाथ इज देयर. सी ये मैंने स्ट्रेट पाथ बना दिया. दिस इज द स्ट्रेट पाथ एंड ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए. हियर पॉइंट्स आर देयर. पॉइंट ए, पॉइंट बी, say C and D in this way. An object is moving from this way. It is covering the distance from A to B, and that is the distance. Suppose that distance is 20 meter. Okay, and it is covering the distance 20 meter in same. We can consider the time as 5. Okay, similarly another 5 seconds, 20 meter. Here also we are considering 20 meter. Here also 20 meter means what we are observing that the object is covering equal distance. ये जो object है वो equal distance cover कर रहा है. कितना distance? 20 मीटर. 20 मीटर करके हमने distance को लिख लिया. ठीक है. Our object is traveling to from A towards B. ये object जो है हमारा A से B की ओर जा रहा है. ठीक है, ऐसे जा रहा है and it is covering 20 meter. You can say distance in 5 seconds से, और suppose it is 10 second. 10 second में 20 meter distance जा रहा है. So here also 10 second time is there. Here also 10 second time is there. Means our object is covering equal distance in equal interval of time. So the object is said to be in uniform motion. अगर equal distance cover कर रहा है from A to B, the distance is 20 meter and it is taking 10 second. Again from B to C 20 meter distance is there and the time taken is again 10 second. From C to D again 20 meter, time taken is 10 second. It means the object is covering the equal distance in equal interval of time. Okay, so that object is said to be in uniform motion. ऐसे object को हम लोग क्या कहेंगे कि our object is in uniform motion because it is covering the equal distance. What is the equal distance? It is 20 meter, 20 meter. Okay, so we are saying that object to be in uniform motion. Similarly, if an object is covering unequal distance, अगर equal distance नहीं है, unequal distance है और in equal interval of time, time interval मेरा equal है लेकिन unequal distance cover कर रहा है. मतलब first 5 second जो हमने यहाँ पे लिया, that in first 10 second it is covering 20 meter. Say next 10 second, suppose that distance will become 30 meter. Then what will happen? It is not covering the equal distance in equal interval of time. वो equal distance ये तो हमने बनाया uniform motion का. ये equal distance को cover कर रहा है object हमारा equal interval of time में. Now I am showing that how the object is covering the distance. Say here in the first 10 second the object is 20 meter. In next 10 second if I am putting it as 30. In another 10 second, it is covering the distance of say 40. Okay, so here what we are observing the distance is varying. Distance क्या कर रहा है? Vary कर रहा है और time interval मेरा same है. Distance covered by the object is unequal. ये unequal distance है 20, 30, 40. It is covering in 10 seconds. That is the equal interval of time. It means the object is in non-uniform motion. ये किस motion में है? Non-uniform motion में है. Now let us take both the example. दोनों example को आप लेते हैं. The first one I have this one is showing the non-uniform motion. ये non-uniform motion show कर रहा है 20 meter, 30 meter, 40 meter. अगर हम लोग uniform motion वाला जो पहले मैंने draw किया था, see here we are saying that it is covering the equal distance. अगर हम लोग यहाँ पे equal distance बता रहे हैं, ठीक है? हमारा object जो है ये 10 we are saying 20 meter, 20 meter. This one is equally it is covering 20 meter and the time taken is 10 second. Here also 10 second, here also 10 second and here also 10 second.
Okay, our object is moving from point A to point B, C and D. See here A, B, C, here D. In this way it is increasing. Okay, now this one is of यूनिफॉर्म मोशन. ये जो है कौन सा मोशन का एग्जांपल है? यूनिफॉर्म मोशन का. और ये कौन सा है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन का. ठीक है. नाउ हाउ टू फाइंड आउट वेदर if we are suppose that we are finding out the speed of an object. What is the formula of speed? Speed का formula क्या है मुझे बताओ? Speed equal to meter per second. Distance traveled upon Time. what is the speed of the object? Speed equal to, you people have learned distance traveled upon time taken. क्या है बना? Speed equal to distance traveled upon time taken. That is. So if we are finding the distance here, speed of that object from A to B, अगर A से B का speed निकाले तो it is 20. That is the distance traveled divided by 10. Okay, तो our speed will be, speed कितना हो जाएगा? 2 मीटर पर सेकंड होगा speed. Is it clear to you all? What we are doing, we are finding the speed of the object in between A to B. पूरा धुंधला दिख रहा है. Yes. A से B तक का डिस्टेंस को हम लोग निकाल रहे हैं. ठीक है ना? We are finding out the distance between A to B. ये यहाँ देखो, this is our point A and this is our point B. इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 20 मीटर. कितने सेकंड में? In 10 seconds. Similarly, from B to C, the distance is 30 meter. Time taken is again 10 seconds. Here also the distance is 40 meter from C to D, but time taken is again 10 seconds. मतलब यहाँ टाइम को अगर देखो तो सेम है, लेकिन डिस्टेंस क्या कर रहा है? वेरी कर रहा है 20, 30, 40. तो अगर हम लोग स्पीड के फॉर्मूला को यूज करके A से B तक का स्पीड निकाले तो स्पीड कितना हो जाएगा ऑब्जेक्ट का? 20 डिवाइडेड बाय 10 यानी 2 मीटर पर सेकंड. यहाँ स्पीड कितना हो जाएगा? 30 divided by 10 that equal to 3 meter per second. Here it will be 40 upon 10 that equal to 4 meter per second. यही होगा ना स्पीड. स्पीड कैसे वेरी कर रहा है? 10 मीटर, 20 मीटर, 40 मीटर. यानी कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इज not covering equal distance in equal interval of time. It means this is an example of non-uniform motion. ये समझ आया तुम लोगों को? हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस को कवर नहीं कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. ठीक है, तो यानी हमारा ऑब्जेक्ट किसमें है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन में. सूर्यांशी इज देयर इन योर क्लास और नॉट? टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल. सूर्यांशी कोई है तुम्हारे क्लास में? टेल मी. सूर्यांशी का तो मुझे किसी को ऐड करने में भी अजीब सा लग रहा है, पता नहीं वो कौन है, एडमिट करने में भी उसको. ठीक है, तो व्हाट वी आर सेइंग दैट इन यस मैम 9G में है सूर्यांशी. 9G में है. लेट मी अलाउ. यस मैम. ओके. So the distance traveled by the object is what we are saying, it is varying. अगर distance को देखो तो ये vary कर रहा है. कैसे vary कर रहा है? फर्स्ट हम लोग जो टाइमिंग लिए हैं 10 जो टाइमिंग लिए, ठीक है, तो 10 जो मीटर है वो क्या है? 10 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है. कितना टाइमिंग हम लोग लिए हैं? कितने टाइम में 10 मीटर डिस्टेंस को वो कवर कर रहा है? फर्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस. Yes, tell me. It means things are not clear to you all. Is it clear? मैम बॉडी नहीं दिख पा रहा है. Okay. See, again I am showing to you people. ठीक है ना? देखो, मैंने 4 पॉइंट लिया है, A, B, C और D. 4 points I have taken. ठीक है, 4 पॉइंट जो है वो हमने लिया है. Let me show you. Again. ये देखो, यहाँ जो है I am drawing it once again. ठीक है,
फिर से हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं, ध्यान से देखो इसको। सी हियर आई एम ड्रॉइंग वन स्ट्रेट लाइन, यहाँ जो है एक स्ट्रेट लाइन को मैंने शो किया। सी हियर आई एम ड्रॉइंग वन स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दिख रहा है तुम लोगों को? टेल मी। Yes, ma'am. यस, Yes, ma'am. now we are putting the points, अब पॉइंट डाल रहे हैं। देखो सपोज दिस इज पॉइंट ए, दिस वन इज पॉइंट बी, दिस वन इज पॉइंट सी एंड दिस वन इज पॉइंट डी। ओके, ये 4 पॉइंट मैंने ले लिया, ए बी सी डी, ठीक है। अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो ए से मूव करना शुरू करेगा। फ्रॉम ए माय ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, this distance I am considering it as 10 meter, ये जो distance है मैंने ले लिया 10 meter, ठीक है। another half distance again 10 meter, here also 10 meter और here also 10 meter। तो अगर हमने distance को 10 meter ले लिया, ठीक है, और 10 meter या 20 meter फर्स्ट एग्जांपल में मैंने कंसीडर किया था, so let us take the 20, 10 या 20 कुछ भी ले सकते हो। ये हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि द डिस्टेंस इज 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर का डिस्टेंस है, और यहाँ जो है ऊपर हमने डिस्टेंस को शो किया है, नीचे हमने टाइम टेकन को शो किया, टाइम टेकन, ठीक है। नाउ फ्रॉम ए टू बी द डिस्टेंस इज 20 मीटर एंड टाइम टेकन इज, सपोज इट इज से 10 सेकेंड। अगर टाइम जो है 10 सेकेंड लगता है, ठीक है, तो यहाँ भी 10 सेकेंड, हियर आल्सो 10 सेकेंड एंड हियर आल्सो 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड में वो 20 मीटर डिस्टेंस को हमारा ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है। 10 सेकेंड के टाइमिंग में 20 मीटर डिस्टेंस को हमारा ऑब्जेक्ट जो है कवर कर रहा है। नाउ इफ वी आर फाइंडिंग द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट, जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड निकालना है, तो s इक्वल टू होता है d अपॉन, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 20 मीटर और टाइम टेकन है 10, तो 10 into 2 दैट इज 2 मीटर पर सेकंड जो है यहाँ से यहाँ तक का स्पीड है, ठीक है। सिमिलरली अगर हाफ निकाले b से c तक तो वो भी 2 मीटर आएगा, c से d तक निकाले तो वो भी 2 मीटर आएगा, और d से ऑनवर्ड e तक निकालेंगे वो भी 2 मीटर आएगा। यानी we are going to say that that object is covering equal distance in equal interval of time। distance देखो equal है, 20 मीटर है, 20 मीटर distance from A to B, from B to C again 20, from C to D again 20, it means the distance is same, time also is same, that is 10 seconds। so the my object is covering equal distance in equal interval of time, so my object is in what type of motion, कौन से मोशन में मेरा ऑब्जेक्ट है? यूनिफॉर्म मोशन। अब ये क्लियर हुआ? यानी हम लोग स्पीड का फॉर्मूला यूज करके स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम टेकन, ये फॉर्मूला को यूज करके हम लोग देख रहे हैं कि ए से बी, बी से सी, सी से डी या डी से ई तक का डिस्टेंस सब 10 सेकेंड है, और टाइम भी लग रहा है उसको 10 मीटर है, और टाइम भी उसको लग रहा है 10 सेकेंड, ठीक है। तो 20 मीटर डिस्टेंस को 10 सेकेंड में वो कवर कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग जो है स्पीड को देख रहे हैं कि 2 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आगे ट्रेवल कर रहा है, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मैंने क्या किया था, ये जो 20 मीटर है, पहले हाफ में 20 मीटर डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड हाफ में इसको मैंने 30 मीटर मान लिया था। This one is the 30 meter. In another half it is 40 meter. In next half it is 50 meter. मतलब हम लोग देख रहे हैं कि 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर ये डिस्टेंस जो है वेरी कर रहा है, ठीक है। 20 फर्स्ट ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर। टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जब निकालेंगे तो ये 20 अब डिवाइडेड बाय 10 होगा तो ये 2 आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से यहाँ तक का जब स्पीड निकालेंगे तो ये 30 डिवाइडेड बाय 10 होगा तो ये 3 आ जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड, और ये आ जाएगा 4 मीटर, ये 5 मीटर। तो ऑब्जेक्ट इज नॉट इन यूनिफॉर्म मोशन। ये ऑब्जेक्ट जो है यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, बिकॉज द टाइम इज इक्वल बट इट इज कवरिंग अनइक्वल डिस्टेंस। टाइम इक्वल है
लेकिन अनइक्वल डिस्टेंस को कवर कर रहा है। तो ये हो गया हमारा नन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल। नाउ आई थिंक इट इज क्लियर टू यू ऑल। क्या क्लियर हुआ? बताओ मुझे। Yes, ma'am. If the object is traveling equal distance in equal interval of time, we are saying that the object is in uniform motion. Now, if the object is covering unequal distance in equal interval of time, we are saying that it is in non-uniform motion. ठीक है? अब जस्ट इसका ऑपोजिट सिचुएशन लो। If the object is traveling 10, we are saying 20 meter. If the object is traveling 20 meter distance, means equal distance it is covering. But if the time is unequal, it means what? It is in what type of motion? Tell me. Non-uniform. Which motion? Non-uniform. नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि अगर इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है लेकिन टाइम वेरी कर रहा है तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल होगा। नाउ वन इंपॉर्टेंट थिंग, सी यू पीपल हैव लर्न हाउ टू प्रिपेयर डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तुम लोग जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ को बनाने का तरीका पढ़े हो, ठीक है? whenever we are drawing a distance time graph, जब हम लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो we are drawing it in two ways. Means हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे? See, first of all we will take the x-axis and then we will take the y-axis. Suppose this is the x-axis. See, here this one is the x-axis and this is the y-axis. ठीक है? ये हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को रिप्रेजेंट करने के लिए बता रहे हैं तुम लोगों को कि मान लो कि हमने जो है इस पर, ठीक है, जो मेरा एक्स एक्सिस है उस पे हमने टाइम को ले लिया, तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ठीक है, और ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया टाइम को, यहाँ हम डिनोट करेंगे टाइम, ठीक है, एंड टाइम वी विल डिनोट इट इन सेकंड। टाइम को डिनोट करेंगे किस यूनिट में? सेकंड में। उसी तरह से यहाँ हम लोग डिस्टेंस को डिनोट करेंगे और इसको हम लोग मीटर में करेंगे, कितना डिस्टेंस कवर्ड किया, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो उसमें जो हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड को इंडिकेट करेंगे इस डायरेक्शन में मीटर में, और टाइम को हम लोग सेकंड में इस तरह से डिनोट करते हैं। दिस वन इज आवर डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस। नाउ व्हेनेवर वी आर ड्राइंग द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, जब हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के लिए ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, our graph will be always a straight line, ये straight line ग्राफ होगा। क्यों? क्योंकि let us take the example which we people have taken earlier। हम लोग एक एग्जांपल लिए जिसमें हमने 10 सेकंड को रखा ऐसे गैप में, 10 सेकंड भी people have taken, 10 सेकंड हम लोग लिए थे, और इधर जो है डिस्टेंस ट्रैवल्ड भी हम लोग वैसे ही लिए थे, ठीक है। तो जब इसको हम लोग डिस्टेंस ट्रैवल्ड को इक्वल दिखाएंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो ग्राफ मेरा इस तरह से स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करेगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो द ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन को दिखाएं, जैसे यहाँ हमने इक्वल इंटरवल को दिखाया कि 10 जो सेकंड है उसमें इसने 20 मीटर के डिस्टेंस को कवर किया, ये 20 मीटर, ये हो जाएगा 20 meter distance in 10 second. Similarly, another 10 second. Here also again 20 meter. So हम लोग क्या देखेंगे कि the graph will be a straight line. एक straight line का ग्राफ बनेगा जब हम लोग distance time ग्राफ बनाएंगे किसका? यूनिफॉर्म मोशन का। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ बनाएंगे, when we are going to draw the graph of non-uniform motion, then we are not going to get the straight line. हम लोग को स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगा। हो सकता है इस तरह का लाइन मिल जाए हम लोग को, अगर इक्वल इंटरवल नहीं दिखाए तो ऐसा लाइन मिल जाए हम लोग को, ठीक है, ऐसे कर्व मिल जाए ऐसे इस तरह से। समझ में आया? तो whenever we are representing a uniform motion at distance time graph, okay, for uniform motion it is always straight line। जब भी यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए वो कर्व्ड हो सकता है। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। एक कर्व्ड लाइन होगा इस तरह का जैसा मैंने दिखाया है, दैट इज फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन।
ये दोनों टॉपिक तुम लोगों को क्लियर हुआ, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन? टेल मी, इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. If we are trying to find out that whether the object is moving with constant speed or not, what we are doing, we are simply dividing the distance traveled by time taken. हम लोग distance traveled को time taken से divide करके speed of the object को find out कर रहे हैं, ठीक है? तो when we are finding out that one, that is distance speed of the object will be distance traveled divided by time taken. So in uniform motion we are going to get the same result, but in case of non-uniform motion we are getting different हम लोग जो है हम लोग को speed जो है vary करते मिलेगा. So that is object. If we know the distance covered by the object, if we know the time taken by the object to cover that distance, we are going to find out the speed. And speed indicate us that whether our object is moving fastly or slowly. वो speed जो है हम लोगों को बताएगा कि हमारा object जो है fast move कर रहा है कि slow move कर रहा है, ठीक है? Now let us find out the speed. अब हम लोग speed को find out करेंगे. How to find out the speed? We people already know that speed equal to distance traveled divided by time taken. Now I am giving you a numerical. Okay, एक numerical दे रहे हैं. Suppose a car travel 100 kilometer in 4 hours. Then the speed of that car will be, what will be the speed? Tell me. Timing दिया हुआ है, ठीक है? टाइमिंग कितना दिया हुआ है? फ्रॉम 9:30 to 9:45, from 9:45 to 10, from 10 to 10:15, from 10:15 to 10:30. It means 15 minute gap is there in between the timing. If we see the timing in this table 8.1, what we are observing that 15 minute difference is indicated here. टाइमिंग के बीच में देखो 15 मिनट का डिफरेंस दिखाया हुआ है, ठीक है? Then they are showing the two object. One object, our object A. Suppose 9:30 is the time given, and from object A traveled a distance of 10 meter. Object A 10 meter distance cover किया है और object B 12 meter distance को cover किया, ठीक है? अब 15 मिनट के बाद 9:30 से 9:45, after 15 minutes the object A is again 20 and object B is 19. Now tell me whether what you are observing, whether the time, which one is in uniform motion and which one is in non-uniform motion. Tell me. Object A is in uniform motion. Very good. Object A is in uniform motion because what we are seeing that it is covering the 10 meter distance in each time interval. 15 मिनट के टाइम इंटरवल में 10 मीटर डिस्टेंस को ऑब्जेक्ट ए कवर कर रहा है, जबकि हमारा ऑब्जेक्ट बी जो है इट इज नॉट कवरिंग द इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. इन फर्स्ट 15 मिनट इट इज 12, next 15 minute it is 19, again next 15 minute it is 23. Means from 9:30 to 9:45 its speed increases, but at once the speed will decrease. We can say the speed increases again to 23, it increases, then 35, 37. Means it is increasing in an unequal manner. ये equal नहीं है, unequal है. 37 हो रहा है, 35 हो रहा है, 23 हो रहा है. तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि object B is not covering equal distance in equal interval of time, because time interval is unequal. Distance travel is unequal in equal interval of time. So object B is in non-uniform motion and object A is in uniform motion. अब अगर मैं कहूँ तुम लोगों को कि डिस्टेंस स्पीड को फाइंड आउट करो, तो क्या फाइंड आउट करोगे? फर्स्ट 15 मिनट में 10 मीटर, सेकेंड 15 मिनट में 20 मीटर. तो कैसे फाइंड आउट करोगे? तुम लोगों के पास टाइम टेकन 15 दिया हुआ है, ठीक है, और डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना दिया हुआ है? 10, 20, 30, 40. तो स्पीड को निकाल लोगे. जब स्पीड, व्हेन यू फाइंड आउट द स्पीड यू विल ऑब्जर्व दैट द स्पीड विल वेरी. स्पीड जो है वेरी करेगा. किसके केस? इन केस 2, मतलब सेकंड वाला जो है नंबर बी जो है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट नंबर बी. तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट नंबर बी द स्पीड इज नॉट कांस्टेंट. वहां हम लोगों को स्पीड जो है कांस्टेंट नहीं दिखेगा. इज इट क्लियर टू यू ऑल?
टेबल 8.1 Yes, ma'am. यस टेबल 8.1 Yes, एनसीईआरटी ma'am. का इसको अगर हम लोग केयरफुली ऑब्जर्व करें तो द टाइम इंटरवल इंडिकेटेड हियर इज 15 मिनट, बट टाइम इंटरवल 15 मिनट है, लेकिन उसमें क्या दिखा रहा है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो है फर्स्ट केस में इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, जबकि सेकंड केस में अनइक्वल डिस्टेंस है। यानी हमारा ऑब्जेक्ट बी जो है वो कौन से मोशन में है? यस, Non-uniform motion. non-uniform. And when you are drawing the graph of this non-uniform motion, it is going to be a कैसा ग्राफ बनेगा? Curve. कर्व्ड। Curve. वेरी गुड, यस, वो कैसा बन जाएगा? कर्व बनेगा। नाउ अब जब भी हम लोग देखो एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। स्पीड का एसआई यूनिट जो है वो क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। दैट डे वी पीपल हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। उस दिन हम लोग जो है